Now we show that Ka is a cyclic subgroup. Now we show that Ka, it's this set a power m plus r minus 1 is a cyclic subgroup of this one, semigroup generated by E. We note that these integers m plus 1, there are integers m plus r minus 1 form a complete set of incongruent residue modulo r. They are incongruent mod r. These are integers. Incongruent residue modulo r. Modulo r. So thus since this one is an integer and one एक positive integer है आपके पास, so there must exist some member from this complete residue modulo r which is congruent to 1 mod r. ये डेफिनेशन है कंप्लीट रेसिड्यू मॉडुलो आर की. अगर कोई भी इंटीजर आप लोगे, कोई भी इंटीजर, you can find a member from that complete residue modulo r. You can find an integer from that complete residue modulo r which is congruent to that integer. So here 1 is an integer. We can find some element from this set m plus 1 m plus r minus 1 which is congruent to 1 mod r. So we can say this: there exists an integer g, what's the variation of g? 0 less or equal to g, it's less than r, or you can say less or equal to r minus 1, such that m plus g is congruent to 1 mod r. Okay, whenever I say there is integer g having the variation 0 less or equal to g less or equal to r minus 1, it means that m plus g is the member of this complete residue modulo r. क्योंकि g की वेरिएशन 0 से लेकर r minus 1 तक है, तो m plus g it's either m or m plus 1 or m plus r minus 1. तो 1 एक्चुअली आपने इंटीजर लिया है जिसके कॉन्ग्रेंट इस सेट में से कोई ना कोई इंटीजर होगा बिकॉज ऑफ द completeness of this residue modulo r. So this gives k times m plus g is congruent to k mod r. This is simple. For every k belongs to the set of positive integers, belongs to n. Therefore this you have to verify. Therefore the powers of this a power m plus g, इसके जो powers होगी ना, power k varies from 1 to r.
k varies from 1 to, or this will exhaust whole ka, or this will generate, use the term generate, okay, this will generate whole ka, this will generate whole ka, which is this set, a power m plus 1, and finally we have a power m plus r minus 1. ओके आप इसको, ये आपके लिए असाइनमेंट है. This will generate whole ka. ये असाइनमेंट है आपके लिए, आप इसको वेरीफाई करिए. इट विल जनरेट होल के, मतलब जी के फॉर के, अगर के का वैल्यू 1 दोगे आप तो के का एक एलिमेंट आपको मिलेगा. अगर के का वैल्यू 2 दोगे के का दूसरा कोई एलिमेंट आपको मिलेगा. इसी तरह से के का अगर आप आर, क्योंकि के में आर एलिमेंट्स है ना टोटल, तो के आर वैल्यूज पर के के आर एलिमेंट्स आपको मिल जाएगी. ये आपको नजर आ रहा है ये जो मैंने लिखा? हाँ, या मैं दो लाइन्स में लिखूं फिर? अच्छा चलो मैं 2 लाइन्स में फिर लिखूं, उससे थोड़ा क्लियर होगा फिर. यस, वो प्लेन पेज यूज करे. प्लेन पेज, ओके. Okay, so home assignment for you. Maybe show that Ka is generated by a power m plus g. So ये इसी के बीच में मैंने लिख दिया हूँ मैं. Therefore Ka is a cyclic subgroup of S. ये आपको मैंने कहा Ka is a cyclic subgroup of S. अब इस सब ग्रुप, ये जो ग्रुप है आपके पास, सब ग्रुप है Ka, इसकी आइडेंटिटी होगी, है ना, ओबियसली इस Ka की आइडेंटिटी होगी, है ना. ग्रुप है S की तो नहीं होगी इन जनरल, बट Ka की आइडेंटिटी होगी. और हमें ये भी पता है कि जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही होता है और वही आइडेंटिटी होती है. ग्रुप्स में अगर कोई एलिमेंट आइडेंटिटी होगा ना, सपोज ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा ग्रुप्स में, सपोज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, वेयर दिस ए इज इन द ग्रुप जी. ग्रुप में अगर ये ट्रू होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ए आइडेंटिटी होगा ग्रुप का, तो obviously you can apply the cancellation law and you will get A equal to E. And conversely, if E is identity, E square is equal to E. ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है. तो ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी होता है. कन्वर्सली अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली आइडेंटिटी होगी. अगर ग्रुप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो इसकी आइडेंटिटी होगी. उसमें ग्रुप में आइडेंटिटी के बगैर कोई दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं हो सकता है. वो आपने देख लिया, अगर होगा कोई आइडेंटिटी ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तब जाके ये ए आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है. तो इस के ए का आइडेंटिटी, ये जो के है ना, ये ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी निकालने के लिए हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट. जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही इसकी आइडेंटिटी होगी. Okay, let us find its idempotent element. Again, since 0 is an integer, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. 0 is an integer. Therefore
अब आपके पास ये जो सेट है दिस वन, ये जो सेट है ना m+1 m+r-1, इट्स ए कंप्लीट रेसिड्यू मॉडुलो r। आप कोई भी इंटीजर लीजिए, आप इसमें से कोई ना कोई इंटीजर पिक कर सकते हो जो इस इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट होगा जो आपने लिया है। ये डेफिनेशन है कंप्लीट रेसिड्यू मॉडुलो r की डेफिनेशन यही है। पहले तो उसके एलिमेंट्स इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकंड, आप कोई भी इंटीजर लीजिए, इसके बाहर आप इसमें से कोई ना कोई इंटीजर निकाल सकते हो जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, या अगर इसी में आप इंटीजर लोगे वो ओबियसली अपने आप के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा। सपोज आपने इसमें m लिया, m के साथ कॉन्ग्रुएंट है ना, या आपने m+1 लिया तो वो m+1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इन जनरल आप कोई भी इंटीजर लीजिए, या आप इनमें से लीजिए या इनसे बाहर लीजिए, कोई भी इंटीजर, you can find integer among these r element which is a complete residue modulo r, and that integer will be congruent to the integer जो आपने चूज किया है। कोई भी इंटीजर आप चूज कीजिए, यू कैन फाइंड वन ऑफ द इंटीजर फ्रॉम दिस सेट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 0 इंटीजर लिया है, तो 0 इंटीजर तो आप, इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीट रेसिड्यू मॉडुलो r है, इसमें कम से कम एक इंटीजर ऐसा होगा जो 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, जो 0 के साथ क्या होगा, congruent. So therefore there exists an integer z with 0 less or equal to z less or equal to r-1 such that m plus z is congruent to 0 mod r, is congruent to 0 mod r. Is congruent to 0 mod r. Okay, m plus r is congruent to 0 mod r. अब यहां से मैं प्रूव करूंगा a पावर m plus r जो होगा ना वो k का एलिमेंट है, a पावर मैं वो यहाँ यस वेयर ओके प्रीवियस पेज, वहां पर भी g वैरी होगा 0 से लेकर r बस। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके हाँ, लेकिन वहाँ पर हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आप कोई भी इंटीजर लीजिए, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कोई आप 1 ले या 0 ले या 2 ले या 3 ले, कोई भी इंटीजर आपको इस सेट में जो है ना, ये सेट आपने लिया है, ये जो सेट ऑफ और इंटीजर्स विच इज अ कंप्लीट रेसिड्यू मॉडुलो r, इस सेट से आप कोई ना कोई इंटीजर निकाल सकते हो जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। आप 2 लीजिए, 2 के लिए भी कोई ना कोई इंटीजर यहाँ मिलेगा। आप 3 लीजिए, 3 के लिए भी कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा यहाँ पर आपको इस सेट से। तो आपने यहाँ पर पर्टिकुलर 2 इंटीजर्स लिए 0 and 1, तो 0 और 1 के लिए भी आपको इस सेट में से इंटीजर, ओबियसली वो डिफरेंट होंगे क्योंकि 1 और 0 डिफरेंट है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू mod r, तो ओबियसली ये दोनों डिफरेंट हो गए, सेम नहीं हो सकते m plus g और m plus z, बट आपको इंटीजर्स मिलेंगे इस सेट से, आपको इंटीजर्स मिलेंगे इस सेट से। m plus g is not always m plus g is not always पर्टिकुलर g के लिए ये होगा, not for all g। ऑल जी के लिए कहाँ होगा, मैंने कहा मैं हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने लिखा ना यहाँ पर देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर g, एग्जिस्ट होगा इंटीजर g, इस 1 के लिए होगा एग्जिस्ट। ओके, ये g 1 के लिए एग्जिस्ट होगा और z 0 के लिए एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो actually it's a generalization of even and odd integers na, because we know that every integer is either congruent to odd or even है ना। आप लीजिए 2 and 3,
2 and 3. Every integer is either congruent to 2 mod, either congruent to mod 2 or mod 2 mod 2 और 3 mod 2. मतलब ये उसी की जनरलाइजेशन है आर के लिए एक्चुअली. नेक्स्ट पेज. तो ये आपको मिला है a m plus z is congruent to 0 mod r. Now what is this a power m plus z? ये किसका एलिमेंट है? इट्स एन एलिमेंट ऑफ k. ये k का एलिमेंट है बिकॉज जो z की वेरिएशन है वो 0 से लेकर r-1 तक है. तो a power m plus z मीन्स इट्स इधर a power m और a power m plus 1 और a power m plus r-1. ये इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट होगा और वो सारे एलिमेंट्स तो इस वो सेट तो ये है आपके पास a power m plus 1 है ना, वो यही सेट है आपके पास. तो इसका मतलब है कि a power m plus z जो है ये है एलिमेंट ka का और हम प्रूव करेंगे यही इसका आइडेम्पोटेंट है. यही इसका आइडेम्पोटेंट है. ओके या सो लेट्स ऐड z throughout m plus z. m plus z. Can we add z throughout? Yes, we can add. No problem. Is congruent to z mod r. Because we know that if a is congruent to b mod r and c is congruent to d mod r, then sum a plus c will be congruent to b plus d mod r. यहाँ पर जो है ना z is always congruent to z mod r. अब आपके पास वो रिजल्ट एक है जो हमने प्रूव किया था. If two positive, two non-negative integers are congruent to each other, congruent mod r, then a power m plus first integer equal to a power m plus the second integer. मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊंगा. हमने ये किया if u is congruent, it's actually if and only if u is congruent to v mod r, if and only if a power m plus u is equal to a power m plus v. ये किया ना हमने, इसको हमने किया है. अब इसी को हम यहां पर अप्लाई करेंगे. अब आपके पास ये आपका u है और ये आपका v है. ओके, treat this as u and this one as v. It's u congruent to v mod r, so that means a power m plus u will be equal to a power m plus v. So this gives, इसको मैं erase करता हूं. This gives a power m plus z plus z. ये आपका u है, a power m plus u is equal to a power m plus v. That's z. This implies it's a power twice m plus z is equal to a power m plus z. This implies it's a power m plus z whole square is equal to a power m plus z. So thus a power m plus z is an idempotent element. Of Ka and therefore identity, and therefore the identity, and therefore the identity of K. Identity of Ka. Therefore the identity of K. तो इसकी आइडेंटिटी भी आपने निकाली. अब हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल में हम कोई एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का हम निकालेंगे इंडेक्स एंड पीरियड. यस,
Who is this? Okay, yeah. This Ka, a power m plus z is the identity of Ka. Next, we define order of an element in a semigroup. In a semigroup. Order of an element in a semigroup. ग्रुप्स में आप ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं? कितनी बार ऑपरेट करेंगे आपके साथ ताकि आइडेंटिटी The least positive integer n such that a power n is identity. अब a सेमी ग्रुप में है, ओके? ये ग्रुप में नहीं है. It's not in group. It's in semi group. How can you define its order? ओके, यहाँ पर जो ऑर्डर है a पावर n इक्वल टू e, अब इस a से जो जनरेट होगा साइक्लिक ग्रुप, उसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा ना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. यहाँ पर हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर सकते such that a पावर n इक्वल टू e, बट वी कैन जनरेट अ मोनोजेनिक सेमी ग्रुप बाय दिस एलिमेंट. हम इस एलिमेंट से एक मोनोजेनिक सेमी ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, जो हमने किया है. ओके, अब ये जो मोनोजेनिक सेमी ग्रुप है, इसका जो ऑर्डर होगा वही इस एलिमेंट ए का ऑर्डर है. आपको बात समझ आ रही है? जैसे आपने ए जी में लिया, इस ए से जो सब ग्रुप जनरेट होगा, इस ए से जो सब ग्रुप जनरेट, उसका जो ऑर्डर होगा वही एक्चुअली ए का ऑर्डर है. उस सब ग्रुप का जो वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वही एलिमेंट ए का ऑर्डर है. उसी तरह से ये जो ए एस में है, इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेगी हम इससे इसका जो मोनोजेनिक सेमी ग्रुप जनरेट होगा इस एलिमेंट से, उसका जो ऑर्डर होगा वही इस एलिमेंट ए का ऑर्डर है. इन केस इफ देयर इज नो रिपीटिशन देन ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनिटी, बट इन केस देयर इज रिपीटिशन देन वी नो दैट दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर a पावर m, देन फाइनली वो है a पावर m प्लस r माइनस 1. तो क्या इसका ऑर्डर क्या है इस मोनोजेनिक सेमी ग्रुप का जो आपने निकाला, वो जो कि a से जनरेट हो रहा है? इसमें कितने एलिमेंट्स है? यस, m प्लस माइनस 1. सो दैट मीन्स द cardinality of this monogenic semigroup, finite monogenic semigroup, is m plus r minus 1, which implies that the order of A is equal to m plus r minus 1. m plus r minus 1. अब मैं इसको डिफाइन करूं ऑर्डर को. ओके, आपको समझ आ गया ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब लेट एस बी ए सेमी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू एस. देन order of A, then order of A is defined by this equation.
order of A is equal to the cardinality of the monogenic semigroup P. If this is an infinite monogenic semigroup, is an infinite monogenic semigroup, अगर ये infinite monogenic semigroup होगा, then we say order of A is infinite. Now in case this is finite, then we can find two integers m and r such that a power m is equal to a power m plus r. If order of this is finite, then there exist positive integers m. M का नाम क्या है? Called the index, I think, index of A, and R, and this is called the period of A, such that the semigroup generated by A is this: A square A power m plus r minus 1. So therefore order of A is the number of elements in this, that's m plus r minus 1, and which is equal to the index of A plus period of A minus 1. वो आप लिखिए यहाँ पर, index of A plus period of A minus 1. That's the order of A. Next, we have an example. So first we have a notation. Let X be a non-empty set, and F is the mapping on X. It's a transformation, it's a map from X to X. Then we use the two road notation, जैसे हम permutation के लिए कर रहे हैं, two road notation. Say this X Y, okay, for F. ये एक ही है, ये बहुत सारे X होगी, मैं लिखूंगा यहाँ पर X I Y I, okay, X I Y. For F, then we use a two road notation, this X I Y I for F, where yi is the image, where yi is the image of xi under this map, under F. जिसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं एक टू रोड नोटेशन की. इफ से x इक्वल से 1 2 3. अब कोई मैप लीजिए आप. नाउ डिफाइन f from x to x by say f of 1 equal to say 2, f of 2 suppose equal to 2, f of 3 equal to say 1. ये है. In two row notation we can write this f as, ऊपर हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे. फर्स्ट रो में 1 2 3,
वो जो नेक्स्ट रो होगा ना, सेकेंड रो, उसमें हम इन एलिमेंट्स की इमेजेस लिखेंगे. व्हाट्स द इमेज ऑफ 1? इट्स 2. एंड व्हाट्स द इमेज ऑफ 2? इट्स 2. एंड व्हाट्स द इमेज ऑफ 3? इट्स 1. So this is the notation for it. We use this two row notation. Okay, now example. Let's take the set X consisting of 7 points, 7 elements, 1, 2, 3, 7, and consider this element. Consider alpha equal to a map on this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Image of 1 is 2, image of 2 is 3, image of 3 is 4, image of 4 is 5, image of 5 is 6, image of 6 is 7, and image of 7 is 5. It's not bijective, okay, it's money one, because the image of 4 and 5 is same. It's not bijective. And it's also not surjective, because the pre-image of 1 does not exist. ये surjective भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है. It's not bijective. We find the monogenic semigroup generated by A. तो उसके लिए हमें व्हाट्स दैट monogenic semigroup, इसका obviously इसका ऑर्डर फाइनाइट ही होगा. तो हमें we find this one. तो ये पता यह किसके बराबर है? इट्स अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2, अल्फा पावर m प्लस r माइनस 1. तो हमें m और r निकालना है. m मीन्स द इंडेक्स, r मीन्स द पीरियड ऑफ अल्फा. और उसको निकालने के लिए हमें देखना है कि रेपिटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है. अगर सपोज अल्फा स्क्वायर से होगा स्टार्ट, अल्फा स्क्वायर आगे किसी जगह रिपीट हो रहा है, इसका मतलब m2 है. इसका मतलब क्या है? m. या अगर अल्फा स्क्वायर से रिपीट नहीं होगा, अल्फा 3 आगे किसी जगह एलिमेंट आ रहा है, अल्फा 3 भी, अल्फा पावर 3, तब हम कहेंगे 3 इसका पीरियड है ना. m लीस्ट सच a पावर m इक्वल टू a पावर m प्लस r. मतलब a पावर m जो है आगे उसी के जैसे कोई और एलिमेंट है, a पावर m प्लस r. तो इसके लिए हमें इसके पावर्स कैलकुलेट करने हैं. हमें देखना है कि रेपिटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है. तो वहां से हमें पता चलेगा कि इसका इंडेक्स और इसका पीरियड क्या है, एंड देन वी कैन फाइंड द मोनोजेनिक सेमीग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा. सो दिस अल्फा इज दिस. व्हाट्स अल्फा स्क्वायर? हमें फिर से वहां फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स लिखने. इट्स वेरी सिंपल, आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे. So 1 goes to 2, then again you apply alpha, 2 goes to 3. So it means that one image of 1 is 3, because you are applying alpha 2 times. Now what's the image of 2? First image of 2 under alpha is 3, then again image of 3 under alpha is 4, that means 2 goes to 4. इसी तरह से 3, 4, 5. इसी तरह से 4, first 5, then 5, 6. Then we have 5, 6, 6, 7. And then we have 6, 6, 7, 7, 5. And then we have 7, 7, 5, 5, 6. It's 6 here. This is your alpha square. We have